بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمیل حسن نوری بول رہے ہیں. اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں. ہمارا ایک بھائی ہے، اچھا وہ 2 کشتی پہ سوار ہونا چاہ رہا ہے. اچھا انہیں دیوبندیت کا عقیدہ بتائیے اور کتاب کا حوالہ اس پر واٹس ایپ کر دیجیے. تو اچھا اچھا کس کس کتاب میں کہاں کہاں کفر انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ ان سے بات کر دیجیے. تو ابھی جی ٹھیک. کہو جی باغ مت ہمارے سامنے بات کر دیوبندیت کا عقیدہ اس کو بتائیے. تو بول ہاں لاؤ بات کراؤ. ہینڈ فری کر کے چھوڑ دو، ہینڈ فری کر کے چھوڑ دو، بات کراؤ. یہ باسیم بیٹھا ہے. اچھا ہاں جی بھائی جان، کیا نام ہے آپ کا؟ عارف. اچھا اچھا عارف بھائی، کہاں سے ہیں آپ؟ لوہتا بڑی مسجد. اچھا لوہتا. آپ ہیں بنارس سے؟ ہاں بنارس. اچھا بھائی جان، تو دیوبندیوں کے بارے میں، دیوبندیوں کے تعلق سے کیا کیا جانتے ہیں آپ بھائی جان؟ بول بتیا ہمیں ابھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا کپڑے خریدے کبھی مارکیٹ سے بھائی جان؟ کپڑے خریدے کبھی؟ کپڑے، جوتا، چپل؟ نہیں، سب پاپا لے جاتے ہیں ہمارے لیے. سب پاپا لاتے ہیں. شادی ہو گئی آپ کی؟ نہیں ابھی شادی نہیں، ابھی بہت زیادہ عمر نہیں. اچھا اچھا پاپا لاتے ہیں کپڑے. تو ویسے کام کیا کرتے ہیں بھائی جان؟ یہ ٹیکسٹائل والا کام، نقشے بند. جی نقشے بند جو نقشہ سالو کا نقشہ جو بناتے ہیں. اچھا 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 سمجھ گیا. ڈیزائنر ہے؟ کام میں سب آتے ہیں نا حرام خور لوگ. ڈیزائنر ہے نا، ڈیزائنر. ہاں یہ ڈیزائن بناتے ہیں نا؟ ہاں وہی ہے. اچھا اچھا مطلب یہ کڑھائی پہ کچھ لکھتے ہیں، کڑھائی کرتے ہیں، یا پھر ڈیزائن اپنے آپ بناتے ہیں، نکالتے ہیں ڈیزائن؟ ڈیزائن بنا کر نکالتے ہیں، یہ نقشے بند ہے. اچھا اچھا یہ نقشہ بناتے ہیں، ڈیزائن بناتے ہیں. یار یہ تو کام کے آدمی ہے. ہاں کام کے آدمی ہے، لیکن ہاں بھائی جانا چاہتے ہیں. جی جی انشاءاللہ میں وہی بتاؤں گا، اور میں ایسا بتاؤں گا کہ ان کو سمجھ آ جائے. اس کو میں سمجھا رہا ہوں، تب بہت سال بھر ہو گیا ہوگا، اچھا اچھا پھر بھی اس کے دماغ میں گھس رہا ہے. اب بتائیے ان کی عمر کتنی بتا رہے ہیں؟ کتنی ہے ان کی عمر؟ ان کی عمر 17-18 کی ایج. 17-18 کی ایج. مارکیٹ سے یہ کوئی سامان نہیں خریدتے ہیں کیا؟ ابھی نہیں تو پوچھو. یار سبزی لینے تو ضرور گئے ہوں گے، ماں باپ نے منگائی ہوگی تو کہ بیٹا سبزی لے آؤ. ہاں جاتے ہیں. جاتے ہو؟ اچھا اچھا جب سبزی لینے جاتے ہو تو آلو ہے، بیگن ہے، گوبھی ہے، اور جو بھی چیز ہے، بہرحال جتنا بھی سامان ہے، ٹماٹر وغیرہ کچھ بھی لے لیجئے، تو آپ اچھا دیکھ کے لے کے آتے ہیں یا خراب ساتھ دیکھ کے لے کے آتے ہیں؟ اچھا رہے گا تبھی میں لیں گے ہم. اچھا اچھا چلیے اچھا لیں گے. اچھا ایک ہی جگہ سے لے آتے ہیں یا 2-4 جگہ ریٹ بھی کرتے ہیں؟ نہیں، ایک ہی جگہ میں سے. ایک ہی جگہ سے لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں سے؟ اچھا جیسا بھی ہو. ہلو ہلو. جیسا بھی ہو ایک ہی جگہ سے لے کے آتے ہیں، مطلب ٹرائی نہیں کرتے کہ کون سا سامان کس کے پاس ہے اور ہمیں کیا چاہیے اور کون سا سامان کس کے پاس کتنے کا ہے. وہ مت اڑا یار بات کرو ڈھنگ سے. بول ٹائم دے رہا ہوں میں آپ کو، میرا ٹائم ویسٹ نہ کرے، اور ایسا نہ سمجھے کہ میں خالی بیٹھا ہوا ہوں، میں کچھ کر رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے بات کریں ڈھنگ سے، دل سے بات کریں، جو بھی تمہارے دل میں ہے فٹافٹ بولیں. ہم کیا بات کریں، ہمیں ابھی اس کے لیے کچھ نالج نہیں ہے. تو نالج نہیں ہے میرے دوست، آپ ابھی کہہ رہے تھے میں ایک ہی جگہ سے سامان خرید لیتا ہوں. جب آپ ایک ہی جگہ سے سامان خرید لیتے ہیں، آپ کے باپ دادا کا ایمان کیا ہے ذرا وہ بتائیں؟ فاتحہ درود نیاز میلاد والے ہیں یا پھر کوئی اور دوسرے والے ہیں؟ بولا سب کرتے ہیں، فاتحہ درود نیاز سب ہوتا ہے. تو پھر تم دوسری جگہ کیوں مطلب ٹٹولنے جا رہے ہو؟ ہم دوسری جگہ کہاں ٹٹولنے جا رہے ہیں؟ اگر ٹٹول رہے ہو تو پھر یہ دیکھو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. جو صحیح لگتا ہے اسی کو کرتے ہیں، اور جو صحیح ہے اسی کو بھی کرتے ہیں. اب میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا، کیا سنیں گے آپ؟ بتائیے.
जिस जमात को तुम अच्छा समझ रहे हो, बेहतर समझ रहे हो, जिसकी तरफ तुम दौड़ रहे हो, ठीक है, जिसको तुम बेहतर समझ रहे हो, वो गुस्ताखे रसूल हैं, और उनकी गुस्ताखी की भी बताऊंगा एक एक करके। क्या सुनने के लिए राजी हैं, तैयार हैं? हाँ, गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं, क्यों गुस्सा करेंगे। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी का नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो नबी है, ये जो नबी है, हाँ, इनके जैसा खुदा ने किसी को अपना महबूब बनाया? नहीं, कमोबेश 1,24,000 पैगंबर है, नहीं बनाया है ना? नहीं, अच्छा, माशाअल्लाह। खुदा ने अपना हबीब बताया है हुजूर को, अपना महबूब बताया है हुजूर को, है ना? हाँ, अच्छा, खुदा के, अच्छा, तुम्हारा कोई हबीब हो, तुम्हारा कोई महबूब हो, तुम्हारे महबूब को मैं बुरा कहूं तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना, क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं, आपको बुरा लगेगा। हम इस चीज का कुछ नहीं, हमने कुछ कहा भी नहीं। मैं वही समझाऊंगा, मैं वही समझाऊंगा। जब पूरा सुन, पहले बात सुने, मैं वही समझाऊंगा। तुम्हारे भेजे में जो बात नहीं है अभी तक, मैं वो डालना चाहता हूँ, आप उसकी सर्च कीजिएगा। नहीं करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद ठहरेंगे। हाँ, ठीक है, आप मेरी बात सुन ले, मेरी बात कल भी जरूर लगेगी। पर एक बात बताते कुछ तो मैं सुनता ही रहता हूँ। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, करता है। मेरी बात सुने। हाँ, कड़वा कभी नुकसान नहीं देता है, जो कड़वी चीज होगी वो कभी नुकसान नहीं देती है, हमेशा याद रखना। मीठी चीज नुकसान देती है। मेरे लफ्ज कड़वे जरूर हैं, मगर फायदा देंगे आपको। मेरे लफ्ज नीम की गोली मान लीजिए, हलक से तो देर में उतरेंगे और कठिन उतरेंगे, मगर आप सर्च कीजिएगा इस पे। ठीक है। तो जो रब का महबूब है, उसे अगर कोई गलत कहे, उसके लिए कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल करे, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? क्या रब बर्दाश्त करेगा? ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना हमारे रब बर्दाश्त करेंगे। करेंगे? ये लफ्ज कहाँ से आ गया, करेंगे? करेगा। हाँ यार, सोबत का असर अभी से आने लगा। मुझे लगता है ज्यादा टाइम हो गया क्या उठते बैठते? नहीं, हम इन्हीं लोग के साथ रहते हैं। ये हमारे फ्रेंड है जो है जमील हसन नूरी। अच्छा, इन्हीं लोग के साथ हम रहते हैं। और तो मेरे दोस्त, जैसे आपके जो ये आते हैं, बताते हैं कुछ कि इसका ये है ये, तो हमें जो समझ में आता है बोलता है, और जो नहीं आता है तो मैं नहीं बोलता कि हमारे हाँ। मुंह से गलत निकल जाएगा। तो मैं एक चीज बताऊं भाईजान, जमात वाले ज्यादातर अनपढ़ लोगों को पकड़ते हैं, ज्यादातर। और अगर यकीन ना हो तो लिख के रख लो, और जितने जमात में लोग हो टेस्ट कर लेना। हाँ, देखते हैं हम। देखते हैं ना। हाँ, मैं खुद 15 साल से ज्यादा रहा हूं, मुझे पूरा तजर्बा है इसका। और उन लोगों को पकड़ेंगे जो लोग इमामों से, उलामा से दूर रहते हैं, दीन के ताल्लुक से कोसों दूर तक मालूमात नहीं होती। समझे मेरे दोस्त? ये उन लोगों को पकड़ते हैं भाई जमात में। और दूसरी बात, आपको फंसाने के लिए आपके पैर तक के जो है चूम सकते हैं, पैर तक के चाट सकते हैं आपके लिए। बार बार सर अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बार बार तुम्हें सलाम करेंगे, सलाम ठोकेंगे। और भाई कैसे हैं भाईजान, और खैरियत से हैं? समझे? हाँ, हाँ। कभी किसी कड़वे आदमी से जो है धोखा मिला है कभी किसी को? नहीं, अभी मैं मीठे आदमी से धोखा मिलता है कि नहीं मिलता, बताइए। क्या कह रहे हैं? जो मिजाज का कड़वा होता है वो कभी किसी को धोखा देता है? मिजाज का कड़वा जरूर होता है, मगर दिल का खरा होता है। मगर जो मीठी चाल चलता है, मीठी बोली वाला जरूर धोखा दे देता है। ये बात ध्यान रखना। और ये मुसलमानों का ईमान लूटने के लिए मीठी जुबान इस्तेमाल करते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का बहुत पहले खुलासा कर दिया, 1400 साल पहले भाईजान। हाँ, समझे? कि नमाजें बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, कुरान बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, हाँ, कुरान बहुत अच्छा पढ़ेंगे,
मगर हलक से नहीं उतरेगा। उनकी पहचानें बताइए, सर घुटाए हुए रखेंगे, समझे, हाँ भौएं चढ़ी हुई होंगी, तहवद या पायजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा होगा, समझे भाईजान। हाँ, तो अब मैं सीधी बात करता हूं, सीधे पॉइंट पे आता हूं, क्योंकि तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो मेरी बात को। अगर समझने के लिए तैयार होते जिस तरह से मैं बता रहा हूं तो फिर उसी अंदाज में मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाता बताता, मगर तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए मैं डायरेक्टली तुमको बता देता हूं। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी को कहते हैं माज़अल्लाह कि हुजूर का ख्याल नमाज में लाना गधे बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है। क्या ऐसे शैतानों के साथ तुम्हारी नमाज होगी? क्या ऐसे शैतानों को तुम मुसलमान मानते हो भाईजान? बोला नहीं। फिर काहे की मोहब्बत है? रब कहता है जो मेरे नबी का नहीं वो मेरा नहीं, तो जो रब का नहीं तुम उसके साथ जा रहे हो यार। जो रब का नहीं है उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम। तो जहन्नम में रहना पसंद करोगे? नहीं। फिर उनसे इतनी मोहब्बत क्यों है? फिर उनकी तरफ इतना झुकाव क्यों है भाईजान? क्या मतलब मेरी बात को एक कड़वी गोली समझ के सुन लो, मगर इस पर सर्च भी करना, तहकीक करना जो मैं बताऊंगा। और दुनिया का कोई भी बदमजहब, कोई भी देवबंदी मेरे बताए हुए हवाले को अगर गलत साबित कर दे तो मेरी तरफ से उसे इनाम है, समझे भाईजान। क्या आप हुजूर के लिए ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करते हो कि हुजूर का ख्याल नमाज में लाना गधे बैल के ख्याल से बदतर है? ऐसा ही मानते हो आप? नहीं मानते। तो जो ऐसा मानेगा वो मुसलमान होगा या काफिर होगा? काफिर हो जाएगा। काफिर होगा ना, काफिर होगा ना। हाँ, तो फिर इन काफिर के साथ रहने वालों के साथ रहने वाला कौन होगा? वो भी तो काफिर हो जाएगा। वो भी काफिर हो जाएगा, जानबूझकर रहने वाला। और आप अभी अनजान हो तो इस कुफ्र को मत कबूल करो यार। ठीक है। जानने के बाद फिर भी कोई उनमें रहे, ठीक है, जानने के बाद फिर भी कोई उनमें रहे तो उसका भी हाल वही होता है जो उस काफिर का होगा। क्योंकि आप जान गए, पहले से नहीं जानते थे आप ये बात, अब जान चुके हो कि इन शैतानों का अकीदा ये है। किताब का नाम है सिराते मुस्तकीम, लिखने वाले का नाम है मौलवी इस्माइल दहलवी, वहाबियों देवबंदियों का बहुत बड़ा पापा, समझे भाईजान। हाँ, अच्छा दूसरी बात, इन्होंने आपके और मेरे नबी को माज़अल्लाह जर्रा नाचिस से कमतर और चमार से ज्यादा जलील बताया। तमाम अंबिया औलिया को जर्रा नाचिस से कमतर चमार से ज्यादा जलील बताया। क्या अंबिया औलिया की शान ऐसी ही है? क्या अल्लाह ने कभी कहा कि मेरे जो ये नबी हैं मेरी शान के मुकाबले में ऐसे हैं? नहीं। दिल पे लोड लेके सुनो यार मेरी बात को और जवाब भी दो। ऊपर ऊपर मत उड़ाओ, मुझे पता चल रहा है कि मेरी बातें तुम्हारे सर के ऊपर से उड़ रही हैं। नहीं, सब हमें एहसास हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके साथ रहता भी नहीं और ये हमें ऐसे से कह रहे हैं। चलिए, अगर ऐसा कभी तुम्हारे जहन में ख्याल भी आए, आप उनसे अलग रहें, दूर रहें, अपने ईमान की हिफाजत करें, वरना हाल वही होगा जिस तरह मैं एक मिसाल दे दूं, जैसे आलू या टमाटर या कोई और दूसरा फल या सब्जी, ठीक है, हाँ। इनमें से कोई एक पीस जब सड़ जाता है तो अपने आसपास के ऊपर नीचे के, तला ऊपर के, दाएं बाएं के सारे पीसों को दाग लगा देता है, सड़ा देता है, अगर उस सामान से बाहर ना निकाला जाए। बात समझिएगा गहराई से मेरी। हाँ। उन काफिरों से अगर आप मोहब्बत करोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुफ्र वो आपके दिल में भी ठूस देंगे। और समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो अगर तुमसे एक भी गलती हो गई, एक भी, तो फिर बहुत बड़ा खसारा है। मैं मिसाल दे दूं, एक जिंदा मिसाल, जिंदा बिल्कुल एकदम
ताजा मिसाल जो कि हर कोई जानता है? हाँ देखिए, आपने शैतान का नाम सुना होगा, हाँ। सुना है ना? बहुत बड़ा आलिम था, फरिश्तों को दर्स दिया करता था, बहुत बड़ा नमाजी भी था, मगर उसका एक भी सजदा काम ना आया, उसकी एक भी इबादत काम ना आई। क्यों? क्यों काम नहीं आई? क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म नहीं माना। नहीं, उसने नूरे मोहम्मदी की ताजीम नहीं की थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ताजीमी सजदा नहीं किया था, इसलिए अल्लाह का हुक्म तो वो मानता ही था। हाँ भाई, अल्लाह का हुक्म तो वो मानता ही था, इबादत क्यों करता था, नमाज क्यों पढ़ता था? ये अल्लाह का हुक्म ही तो था, मगर उसे ताजीम मुस्तफा से उसने इनकार किया था, उसे मेरे नबी से दुश्मनी थी, एलर्जी थी, नूरे मोहम्मदी का इनकार किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम से इनकार किया, इसलिए उसके गले में लानत का तोक पड़ा और जन्नत से बेदखल कर दिया गया। तो जो जन्नत में रहते हुए भी निकल जाए अल्लाह के नबी की ताजीम से इनकार करके, तो जिन्होंने जन्नत नहीं देखी वो कैसे जाएंगे? बात आ रही को समझ में? हाँ। मेरी बातें कड़वी तो होंगी जरूर, ठीक है? अगर आप उधर से हाँ ना में जवाब दोगे तो मैं बहुत प्यार से भी बता सकता हूँ क्योंकि आदमी का मिजाज देख के भी बात होती है कभी कभी। हाँ, अभी हम तबीयत भी हमारा सही नहीं था, इसीलिए हम ढेर बोल नहीं सक रहे ना। अच्छा अच्छा, उनको ये शॉर्टकट में मैंने आपको बताने की कोशिश की, बहुत सारी बातें हैं, अच्छा लगा और बेहतर भी है, बहुत सारी बातें हैं। हक भी है। मेरा YouTube चैनल है नूर हसन रजवी नेटवर्क के नाम से, अच्छा। आप अगर उसको सुनेंगे तो बड़े से बड़े देवबंदी की हवा खराब करके रखी है मैंने उस पे, जवाब नहीं देते हैं, जब खुद शिकस्त खा जाते हैं ना तो अपने जाहिल लौंडेला पांडो को भेजते हैं बदतमीजी कराने, गाली बकवाने के लिए, समझे भाईजान? हाँ। मैं इन्हीं शैतानों में से निकला हूँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे नॉलेज है इन शैतानों का, तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप अपने नबी के दुश्मनों में शामिल ना होंगे। नहीं होंगे। हाँ, और अगर कोई देवबंदी जमात वाला आपको ले जाने की कोशिश करे, ठीक है, हमें तो ले जा ही नहीं सकता क्योंकि हम अपने फिर भी दूसरे ही ऐसे नहीं लेके जाते हैं, वो सिर्फ मीठी मीठी बातें बताते हैं, आके बार बार सलाम करते हैं। हाँ, उनकी सारी, हमारे घर वाले तो कभी नहीं जाने देंगे। हाँ, उनकी सारी मकरो फरेब वाली जितनी बातें हैं, जितनी उनकी चालाकियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, उनकी रग रग से वाकिफ हूँ। सब हमारे कस्टमर है वो लोग बस। हाँ, तो कस्टमर है, कस्टमर तक ही रहने दीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। सलाम कलाम दुआ बिल्कुल खत्म, अगर सलाम भी करना है तो सलाम वालेकुम, हाँ, सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये वाला। उनको सलाम करना भी मना है, हुजूर का फरमान है। बात आ रही समझ में? हाँ, समझ में आ रही। हाँ, हुजूर का फरमान है ये, सलाम करना भी उन्हें मना है, और वो सलाम करें तो उनके सलाम का जवाब देना भी मना है, और उनके यहाँ शादी ब्याह करना भी मना है, उनके यहाँ खाना पीना भी मना है, ठीक, उनके साथ नमाज पढ़ना भी मना है, उनके जनाजे की नमाज पढ़ना मना है, अगर वो बीमार पड़े तो उन्हें देखने जाना भी मना है, मर जाए तब भी देखने जाना मना है। ये अल्लाह रसूल का कानून है, ये शरीयत का कानून बता रहा हूं मैं भाईजान आपको, ये मेरे घर की बात नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका फैसला। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो कह रहे हैं नूर हसन भाई पूरा किताब उताब और हवाला वाला सब भेज दीजिएगा। जब जरूरत पड़ेगी कोई मांगेगा तो इंशाल्लाह जरूर दिया जाएगा हजरत। नहीं, इसको देना जरूरी है, इसके यहाँ सब आकर बैठे रहते हैं हर बार। अच्छा अच्छा अच्छा,
تو جب दिन رہتے ہیں نا, भर بیٹھے सब رہتے ہیں, बैठे تو انہیں रहते हैं। لوگوں سے میری بات کرائیے گا کبھی کسی بات کو چھیڑ کے. ہم نہیں نا جا پاتے ہیں, اپنے کام میں رہیں گے, الگ اپنے دکان میں رہتا ہے. اچھا اچھا. دکان میں جانا بہتر نہیں نا ہے, ان کا کام ہے جو کام کرے. ہاں ہاں ہاں. جمعے کو ہم خالی رہے, سنڈے کو خالی رہتا ہے. اچھا اچھا. بس یہی بات ہے. یہ ان اچھا کو مسلمان کہتا ہے بار بار, اس کو سمجھاتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا. جی. ان کو یہ مسلمان سمجھتا ہے. اچھا. بہرحال بھائی جان, آپ ان کے عقیدے کے تعلق سے کوئی بات چھیڑ کے ان سے معلوم کیجیے گا, قریدیے گا, تھانوی جی کے بارے میں کچھ بات کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ سب معاملہ نہیں ہے. جی. وہ یہ سمجھتا ہے وہ بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان. ہاں 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 ہاں. بس یہی صلح جی جی. کلیت والا پورا ایک دم. ہاں ہاں ان کو برا مت کہو, ہاں. صلح کلیت والا کام کرتا ہے. اس کو بار بار سمجھاتا ہوں, سمجھ میں نہیں آتا. قرآن نے برے کی برائی کہی ہے. ہاں وہی یہی سب بات اس کو بتاتا قرآن ہوں. نے برے کی برائی کی ہے اور اچھے کی تعریف کی ہے. جی. ایمان والوں کی تعریف ہے, منافقین کی برائی ہے قرآن میں. ہاں, اگر ایسا نہ ہو کہ برے کو برا نہ کہو تو پھر تو قرآن پڑھنا بند کیا جائے, کیونکہ قرآن نے برے کو برا کہا ہے. جی. ہاں. چلیے ٹھیک ہے, آپ اس پر بھیج دیجیے گا, واٹس ایپ کر دیجیے اسی نمبر چلیے پر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ان کو آپ مجھے کتاب واٹس ایپ کر دیجیے گا. یہ انہی سے کتاب منگائیں گے نا, ٹھیک. انہی سے منگائیں گے, انہی کو دکھائیں گے. صحیح. یہ والا بہتر پڑے گا. ٹھیک. جب یہ خود پڑھیں گے تب ان کو خود سمجھ میں آئے گا. ہاں ٹھیک ہے, چلیے پھر السلام کبھی علیکم. بات ہوئی. وعلیکم السلام.